सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि हरि ओम। तो आज है हमारा जो सब्जेक्ट है गोपालेर माँ, गोपाल यस की माँ अघोरमणि देवी एक जी बाल विधवा थी। और वो ठाकुर के पास आई और उसके बाद में उसका सारा वर्णन बड़ा सुंदर है। वो श्री कृष्ण को गोपाल समझती थी और श्री कृष्ण उनके सामने बच्चे जैसा रहते थे। एक्चुअली उनको विजन होता था गोपाल के साथ, और वो फिर गोपाल जो है वो श्री राम कृष्ण में चले गए थे, तो गोपाल श्री कृष्ण राम श्री राम कृष्ण को वो गोपाल कहा करते। ये शॉर्ट में मैंने आपको कहा है। अब उसी जी की को प्रारंभ करते हैं। संजय, आप समरी कीजिए। जी महाराज। हम्म। Gopal Ma, a tale of divine motherhood and unwavering devotion. In the annals of mystical spirituality, few stories are as tender and extraordinary as that of Agormani Devi, better known as Gopal Ma. Her life stands as a luminous testament to the power of Vatsalya Bhav, the attitude of a parent towards a child as a legitimate and profound path to God realization. In an era when widows in 19th century India were expected to fade into silent, inconspicuous lives of renunciation, Gopal Ma transformed her widowhood into a passionate love affair with the divine, ultimately beholding the infinite Krishna as her own living, breathing child. The making of a saint, born around 1822 in a Brahmin family in Kamarhati. जी क्या हुआ? Uh, just a minute. A northern suburb of Calcutta, Agormani Devi's life took an unexpected turn when she was married at the tender age of 9. Following the custom of her time, her wedding proved to be both the first and last time she would have see she would see her husband. By the age of 14, she was a widow, the marriage never having been consummated. In traditional Hindu society, a Brahmin widow does not remarry. The love and energy that would have flowed toward a husband and children had nowhere to go, or so it seemed. Providence, however, had other plans. Initiated into spiritual life by her husband's family guru, she received the Gopal mantra and took the child Krishna as her chosen deity. What might have been the story of a faithful wife instead became the story of a saint. After her parents' death, Aghormani found refuge at the temple garden of Govinda Datta in Kamarhati, a large estate on the banks of the Ganges. There she met Manomohini, Govinda's widowed daughter in law, a pious woman who lived like a nun, sleeping on the floor, bathing 3 times daily, and eating only one meal a day. Recognizing a kindred spirit, Manmohini welcomed Aghormani as a companion. For the young widow, this solitary holy place by the sacred river became the sanctuary where her spiritual life would flourish. The discipline of devotion. Gopal Ma's daily routine maintained for over 30 years from 1852 to 1883 reveals the extraordinary discipline underlying her mystical experiences. She would rise at 2 a.m., wash her face and hands, and begin her japa. Continuing until 8 a.m., she then cleaned the Radha Krishna temple, washed the worship vessels, picked flowers, and made garlands and sandal paste.
She bathed twice daily, morning in the Ganges and evening in the pond. After her morning bath, she meditated under a willow tree in the temple garden before collecting dry wood and leaves for her cooking fire. Her living conditions were Spartan by any measure. Sister Nivedita, who would later know her, described the tiny room where Gopal Ma spent most of her life. Her bed was of stone, and her floor of stone, and the piece of matting she offered her guests to sit on had to be taken down from a shelf and unrolled. The handful of parched rice and sugar candy that formed her only store hung from the roof in an earthen pot. Yet the place was spotlessly clean, washed constantly by Ganges water of her own study carrying. In a niche near her hand lay an old copy of the Ramayana, her great horn spectacles, and the little white bag containing her beads. On those beads, Nivedita wrote, Gopal Ma had become a saint. Hour after hour, day after day, for how many years had she sat day and night absorbed in them? The vision that changed everything. Shortly before meeting Sri Ramakrishna, an incident occurred that transformed Gopal Ma's spiritual practice into something far more intimate. One day, as Swami Ramakrishnanand later recounted, she was cooking when everything went wrong. The fire would not burn, the wood was heavy with moisture, and smoke blew into her eyes. When the food was finally done, an adverse wind blew away the banana leaf on which she intended to serve it. Frustrated, she began scolding God for making everything so difficult for her beloved Gopala. As she was talking, a little boy appeared, brought back the leaf, held it flat on the ground until she had put the food on it, and then disappeared. She began to feed her Gopala but suddenly stopped. Who was that little boy? In that moment of recognition, she realized it was Gopala himself. From that moment, she became mad. All day and night she cried, Where is my Gopala? Where is my Gopala? She could not sleep or eat. Only at night would she prepare a little food for him, and everyone thought she had truly lost her mind. Meeting Sri Ramakrishna. In the fall of 1884, Gopal Ma went to Dakshineswar to meet the holy man whose name had begun to spread far and wide. Sri Ramakrishna received her and her companions cordially, sang a few songs, and gave advice on devotion. Recognizing the spiritual magnitude of both Gopalma and Manmohini, he praised them in his sweet manner. Ah, what a beautiful expression on their faces! They are floating in the ocean of bliss and devotion. Their eyes are soaked with divine love. An irresistible attraction drew Gopalma back to Dakshineswar. On one visit, she brought 2 pennies worth of stale sweets, all she could afford. Sri Ramakrishna, to her embarrassment, eagerly asked for them and ate them with great relish. He suggested she bring sweet coconut balls or ordinary dishes she cooked herself. I want to eat your cooking, he told her. Gopalma was perplexed. She thought, what a strange monk. He talks only about food. I am a poor widow. Where shall I get so many delicacies for him? Enough, I shall not come back again. Yet, as soon as she crossed the gate of the Dakshineswar garden, she felt him pulling her back. She could not proceed further. She returned to Kamarhati, but the attraction only grew stronger. The ultimate vision, the spring of 1885 brought the climax of Gopal Ma's spiritual journey. One morning at 3 a.m., after finishing her japa and pranayam, she was about to offer the results of her chosen deity when she noticed Sri Ramakrishna seated at her left with his right
fist clenched. Startled, she wondered how he had come at that odd hour. As she later described, I looked at him in amazement and thought, how did he come here? Meanwhile, Gopala kept on smiling sweetly. She used to call Gopala to Sri Ramakrishna. As I took courage and grasped her left hand, Sri Ramakrishna's form disappeared, and in place of it appeared the real Gopala, a big child 10 months old. His beauty and look beggar description. He crawled towards me and raising one hand said, Mother, give me butter. Overwhelmed, she cried out, My son, I am a poor, helpless widow. What shall I feed you? Where shall I get butter and cream, my child? But Gopala kept insisting. Sobbing, she brought some dry coconut balls from her hanging basket. She could not perform japa at all that day. Gopal sat on her lap, snatched away her rosary, jumped on her shoulders, and moved around the room. At daybreak, she rushed to Dakshineswar like a crazy woman, still seeing Gopal's two tiny rosy feet hanging over her bosom. When she arrived, a woman devotee was cleaning Sri Ramakrishna's room. The devotee later recalled, she entered through the eastern door like an intoxicated person with disheveled hair, staring eyes, and the end of her cloth trailing on the ground. She was completely oblivious of her surroundings. Sri Ramakrishna entered an ecstatic mood and sat on her lap like a child, and she fed him with cream, butter, and sweets she had brought. The devotee was astounded, for never before had she seen the master touching a woman in a state of ecstasy. Living with the divine child. For 2 months, Gopalma's vision and play with Gopala continued. Her chosen deity, for whom she had practiced japa and meditation all her life, was now pestering her, demanding this and that, playing in front of her. When she went to bed, Gopala was by her side. She had a hard bed without a pillow, and he began to grumble. At last, she cradled his head on her left arm and said, My child, sleep tonight in this way. Tomorrow I shall go to Calcutta and ask the daughter of the landlady to make a soft pillow for you. The next morning, as she went to collect dry wood for cooking, Gopal accompanied her and helped her. While she cooked, the naughty child played tricks on her. She tried to control him, sometimes with sweet words, sometimes by scolding. This was no longer meditation or prayer. This was motherhood in its most literal and divine sense. The wisdom of a saint. When Gopal Ma asked Sri Ramakrishna about this, whether she should continue her japa as assured by he assured her 3 times that she had attained everything. It is no longer necessary for you to practice japa and austerity for yourself. He said, but if you wish, you may continue those disciplines for the welfare of this body. Her vision gradually subsided, and Sri Ramakrishna explained that in the Kali Yuga, continuous vision would not allow the body to last long. Yet her spiritual maturity only deepened. When a disciple brought her a mosquito curtain to protect her from the insects that filled her room, she found her mind constantly wandering to it, wondering whether a cockroach or rat might be eating a corner. What? This wretched curtain thus to take my mind away from my Gopala? She exclaimed, bundled it up, and returned it the next morning, having walked at least 5 miles starting at 3 a.m. Even a pet cat became a vehicle for her divine vision. Seeing Gopala in the cat, she would cry out in distress if anyone disturbed it. What have you done? What have you done? Gopala is going away. He is gone. Legacy and passing. After Sri Ramakrishna's passing, Gopalma continued to live in her simple room in Kamarhati. Despite the place being known to be haunted, when Swami Vivekananda sent his Western disciple
Sister Nivedita, Mrs. Ole Bull, and Miss Josephine MacLeod to meet her, he said, "Ah, this is the old India that you have seen, the India of prayers and tears, of vigils and fasts that is passing away." Her final days were spent in the care of Sister Nivedita, who wrote, "I feel thrilled when I am with Gopalma. The words of Saint Elizabeth sound in my ears. What is this to me that the mother of my Lord should visit me? For I believe that in Gopalma is sainthood as great as that of a Paramahansa, a soul fully free." On 8 July 1906, Gopalma was carried to the Ganges where she breathed her last at dawn. Touching the holy water of the river in her room, the monks found her two most precious possessions, the rosary that had passed through her fingers millions of times, and a picture of Sri Ramakrishna who had appeared before her as Gopala. The timeless teaching. Once a disciple asked for advice. Gopal Mas said simply, "Ask advice from Gopala. He is within you. No one can give better advice than he. This is the truth. Cry with a longing heart and you will reach him." Her life offers a profound teaching for spiritual seekers of any tradition that God can be approached through any sincere attitude of love, even that of a mother for her child. The infinite can indeed assume finite form for the pure heart that longs for nothing else. Her story reminds Very good. us that the divine child is always waiting to be born, not in a manger, but in the cradle of a human heart that has learned to love without condition, without reservation, and without end. Pranam Maharaj. हम्म। Yes, ये तुमने very good. कौन सी किताब से लिया? यही जो सर्कुलेट होके आया था चेतनानंद जी महाराज की किताब, अच्छा, चेतनानंद ये जी का लिव तो विद इससे गॉड, फर्क है। जी हाँ, उस ये लिव उसी विद से गॉड। निकाला है हमारा जी। अच्छा अच्छा, हुआ थोड़ा सा संजय जी, पर इट वाज वेरी इसमें गुड, तो फर्क वेल डन। एनीवे। ठीक है, ओके, वेल डन। वेरी नाउ शैल वी स्टार्ट विद वेरी द क्वेश्चंस? जी महाराज जी। दिलीप भाई शुरू कीजिए। हाँ, यस महाराज जी। क्वेश्चन नंबर 1, she was initiated by her family guru. How she became sannyasi and started an austerity life? Is it all done by her from her heart and nobody taught? No permanent guru was there. Can we say sanskar of the past lives? यस, यस। से ऑफिशियली ऑफिशियल संन्यास नहीं होता उनका। ऑफिशियल संन्यास नहीं ले, जैसे हम लोगों का संन्यास होता है ना, हाँ वैसे गुरु के साथ में और वैसा मंत्र वगैरह कर कुरा के वैसा संन्यास नहीं। वो सन्यासी जैसा रहती थी, हाँ तो उसने कोई डेफिनेट संन्यास नहीं लिया था। जी वो उस सन्यासी जैसा रहती थी। हाँ ओके और ये सब अपने आप उनका ऑफिशियली हुआ, कोई और किसी ने उनको डायरेक्ट नहीं किया, गुरु नहीं था। जी। अपने आप उनको भगवान से जो मिलता था, उनको गाइडेंस मिलती होगी, उससे अनुसार करती थी। तो ये ऑस्टेरिटी ये रहने का कारण इनके पास संस्कार होंगे जो ईश्वर उनको। हाँ, सब पूरे संस्कार है। हिंदुओं को तो सब संस्कार होते हैं ना, बहुत सारे। जी जी राइट। नाउ नेक्स्ट ऐसा है ना क्वेश्चन। कि वो क्या है कि वो छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। हाँ हाँ, और विधवा हम लोग यहाँ पे तो हिंदुओं का ऐसा है, विधवा हो गई यानी क्या, बस उसके बाद में सारा जीवन वो एक सन्यासिनी जैसा रहती जी है ना। हाँ, वो जी बिल्कुल। कपड़े वपड़े भी सीधे सादे सादे कपड़े पहनेगी, और बहुत तपस्या करेगी, जब ध्यान वगैरह करेगी, उपवास करेगी, ऐसे ही तो रहती है सन्यास हाँ विडो जो हाँ होती है। जी तो उस प्रकार से उन्होंने रहा, अच्छा अच्छा तो कोई राइट प्रॉब्लम नहीं है। जी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, page 367 of my book. Consequently, the only devotee, Sri Ramakrishna, would give these things to wear Swami Vivekananda and Gopal. He knew that the minds of these two great souls were such a high realm
that they could never be affected by eating such food. Maharaji, Gopal Ma and Swamiji were put at a par. Is Gopal Ma being so powerful and spiritual? पावरफुल प्रश्न नहीं है, प्योर. Oh, sorry, हाँ लैंग्वेज गलत है, प्योर. यस जी. ठीक है. तो हाँ, तो मेरा ये सवाल था. हाँ, वो इतनी पवित्र थी, इतना उच्च कोटि की साधन वो थी, आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी उच्च कोटि की थी. आप वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वर्ड मत यूज कीजिए. नहीं नहीं, बराबर है, नहीं. कोई भी आदमी है, ये बाहर का आदमी है, गृहस्थ हो सकता है, सन्यासी हो सकता है. हाँ अंदर की बात है ये. यानी वो जहाँ रहती थी और स्वामी जी का जीवन, दोनों में तो हाँ जमीन आसमान का अंतर है जी. कि नहीं? स्वामी हाँ जी सन्यासी थे, पुरुष थे, हम सारे जी. जगह घूमे. और गोपाल की माँ तो बिल्कुल अलग प्रकार की थी. उससे क्या फर्क जी, पड़ता है? नहीं फर्क नहीं आध्यात्मिक पड़ा. दृष्टि से, पवित्रता की हाँ दृष्टि से दोनों इक्वल थे. हाँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, he knew that the minds of these two great souls were such a high realm that they could never be affected by eating of such food. इसलिए मैंने हाँ, पूछा. यानी हाँ हम लोग यदि बुरा बुरा यानी खाएंगे, बुरा लोगों का खाना खाएंगे, और वो हाँ. यदि अपवित्र व्यक्ति होगा तो हमारा मन खराब होगा, इन लोगों का नहीं होगा. अच्छा, ये दोनों. पेज 368, क्वेश्चन नंबर 3. Just before her arrival, the master was talking to the devotees when suddenly he went into ecstasy. His body assumed the pose of Gopala, crawling on both knees, one hand resting on the ground, the other raised, and the face turned up as if he were expecting someone. Gopalma arrived then and found Sri Ramakrishna in the posture of a chosen deity. The devotee were amazed, seeing that divine sight. Maharaj Ramakrishna, whom we say incarnation, so of any particular god, if a devotee is of Mahavir or Buddha, then Ramakrishna will be seen as Mahavir or Buddha to the devotee. हाँ 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 हाँ. I see. एक ही सत्ता है, परमात्मा सत्ता है, वो विभिन्न रूप अवतार धारण करती है. जी. हम्म. तो यदि महाराज जी यानी है इसके अंदर, ये तो अब ये गोपाल माँ ऐसा का. है कि बुद्ध 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 और जैन का तो कोई दृष्टांत श्री रामकृष्ण की जीवनी में नहीं मिलता. हाँ लेकिन बराबर. जितने हिंदू देवी देवताओं के दृष्टांत हैं वो मिलते हाँ. हैं. श्री राम कृष्ण किसी को कृष्ण के रूप में दिखे, श्री राम कृष्ण किसी को राम के अच्छा रूप में दिखे, इस प्रकार के तो जी. दिखते हैं. लेकिन अच्छा बाकी अच्छा, के हम नहीं जानते. राइट. वो मेरे सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पेज 368. Only a man renunciation realizes God. The devotee who is simply satisfied with other men's hospitality and returns empty-handed sits very close to God. He did not say a single word to her, but he kept looking at her bundle. Gopalma understood. Maharaji, if a devotee gives something to another devotee, is it a hindrance in renunciation? डेफिनेटली. अच्छा, यानी. हाँ, डेफिनेटली. अच्छा अरे अच्छा. अरे, हमारा पहले जब हम साधु बने थे हाँ तो हमारे पास एक बैग था, एक झोला था, एक जी. बिस्तर छोटा सा गोल घूम लपेट कर बिस्तर था, हाँ और 10 4 जी. 5 सब वो थी, किताबें थी. हाँ और आप लोगों के दे के आप लोगों के देने के कारण हमारा एक कमरा, बड़ा कमरा भर शिष्य गया को है. इस प्रकार से हाँ. उत्तर देना एक मिनट, चाहिए. एक मिनट, तो कौन ये आप बोल रहा? हाँ जी महाराज जी. हो गया ना, अब कमरा. अब इतना सब हो गया है, हमारा ओके, संसार हो राइट. गया है. जी. नेक्स्ट. One should not disclose one's visions to others because it stops further visions. Maharaj ji, one should not narrate even to our guru. तो गुरु जिसके को बारे. कहाँ बोला कि नहीं करती?
गुरु को नहीं तो मैंने, बोलना चाहिए, इसमें क्या बात। हाँ गुरु से बात करते रहना चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, गुरु से हाँ, कह सकते। अच्छा जी जी। Next, question number 6. Look, I'm an old, illiterate woman. What do I know about the scriptures? Why don't you ask Sarad, Jogin, and Tarak? But they persisted. So finally she said, wait, let me ask Gopala. Oh, Gopal, I don't understand what they are talking about. Why don't you answer their questions? Hello, Gopala says this. In this way, Gopal Ma answered the devotee. Now, my question here is that what Gopala said to the questions asked to Gopal Ma. So nowadays, this is the question arises of the Chat GPT, Gemini, AI, and Mata and others. Whether they are also speaking the same way what Gopala said, and which now they अरे are वो लोग converting. संसार की बात, वो यहाँ की जो आपकी जो मोबाइल, अपना मोबाइल फोन का के जो प्रोग्राम्स है ना, हाँ, ये तो संसारी आंसर हैं, आध्यात्मिक आंसर नहीं है। उसमें अच्छा, कोई आध्यात्मिक आंसर नहीं होता है, सब सांसारिक दृष्टि से बात की जाती है। जी तो महाराज जी। सीधी बात है, उसमें क्या है, नहीं नहीं क्या महाराज तुम्हारा जी, क्वेश्चन। नहीं नहीं, सवाल ये है कि आज की तारीख में हम जो भी सवाल पूछते हैं अपने स्पिरिचुअल, तो उसका भी जवाब ये लोग देने लग गए हैं, इसलिए मैंने पूछा कि हाँ वो लोग जाने, वो जाने, हम नहीं जानते, वो गलत है। हो सकता है वो गलत है। गलत भी हो सकता है, गलत भी हो ओ, सकता है। जी जी वो गुरु जी। आध्यात्मिक गुरु के बिना नहीं होगा। हाँ, हाँ। ओके। नाउ क्वेश्चन, यस, दैट इज राइट। नाउ नंबर 7, I feel thrilled. Nivedita wrote in a letter that time, when I am with Gopalma, the words of Saint Elizabeth sound in my ears. What is this to me that the mother of my Lord should visit me? For believe that in Gopalma's is sainthood as great as that of Paramhans, a soul of fully free. Maharaj, please tell us something about Saint Elizabeth. आई डोंट नो अबाउट सेंट एलिजाबेथ। Yeah. मैंने अपना, तुमने मेरे को इंटरनेट से भी तो हाँ, दिया मैटर, उसमें कुछ हाँ, भी समझ में नहीं आता है। नहीं, हाँ महाराज जी, मेरा सवाल इसके अंदर ये है, क्योंकि जो एलिजाबेथ का बताया गया है, उनने भी ऑस्टेरिटी की लाइफ लीड करी थी, फास्टिंग करती थी, गरीबों की सेवा करती थी, और ये सब करती थी। तो मेरा सिंपल सवाल ये है कि शी वाज आल्सो मैरिड एंड लेटर हर हस्बैंड एक्सपायर्ड एंड शी स्टार्टेड दिस लाइफ। सो माय क्वेश्चन इज, क्या जीसस क्राइस्ट के भी हाउस होल्डर डिवोटीज है, ये आप बता सकते हैं? क्योंकि आपने बाइबल और टेस्टामेंट पढ़ी हुई ऐसा है। सुनो, ऐसा है कि सुनो सुनो, जी क्रिश्चियनिटी पे पूरा एक रिलीजन है, धर्म है। जी। उसमें संत भी हैं, वो सन्यासी भी हैं, और हाउस होल्डर भी है, सब है। अच्छा, दैट इज अ सेपरेट बुक एंड सेपरेट पंथ। अरे सेपरेट सेक्रेट रिलीजन है, अच्छा अच्छा, रिलीजन सेपरेट है। सेपरेट रिलीजन है, उसमें कई किताबें आपको मिल जाएंगी, संतों की जीवनियां मिल जाएंगी। अच्छा, राइट, जी जी। Maharaj ji, my next question, number 8. Maharaj ji, how did Gopal Ma's spiritual journey changed after meeting Sri Ramakrishna? What I understand, Gopal Ma Vatsalya Bhav in spiritual life not changed even after meeting with Ramakrishna. Am I correct? हाँ, वो चेंज थोड़ी हुआ, वो चेंज नहीं हुआ, वो फुलफिल हुआ, उसकी पूर्णता हुई ठाकुर को मिलने के बाद में। हाँ हाँ, okay, हाँ, वो right, तो Maharaj. सीधा लिखा हुआ है, उन्होंने श्री रामकृष्ण में गोपाल को देखा, तो चेंज हाँ, होने का फुलफिल क्या होता है, वो तो फुलफिल हुआ है इनका जीवन, उनकी जीवन की अच्छा, पूर्णता, उसकी सिद्धि हुई है। ये क्या जी। क्वेश्चन है। Yeah. Maharaji, Gopal Ma's devotional practices differ from other devotees of Ramakrishna. If so, then how she is considered as one of the household devotees of Sri Ramakrishna? इसके बारे अरे में कुछ बता। श्री रामकृष्ण के जितने हाउस होल्ड डिवोटीज थे, सबकी अपनी अपनी साधना थी। अच्छा,
एक शरीर की साधना किसी की नहीं थी। ओके। बलराम एक जी। प्रकार की साधना करते थे, रामचंद्र देव दूसरे प्रकार की साधना करते थे। कोई श्री रामकृष्ण की एक कोई डिफिनेट साधना श्री रामकृष्ण अलग अलग सब भक्तों को अलग अलग प्रकार की साधना कराई। हाँ, राइट महाराज, बस प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। तो कुंडू हो कुंडू। हम्म? क्या महाराज हुआ? मेरा पहला सवाल है। हाँ। हाँ महाराज, कैन यू हियर मी? यस यस यस। यस हेलो। यस। हाँ महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन इज पेज 360. Spiritual life is not a matter of show. A spiritual seeker may not be able to hide the joy or sorrow felt during sadhana. How and why does expressing it weakens the spiritual life? नो नो आई डोंट अंडरस्टैंड इट इज ए क्वेश्चन ऑफ शो। जब बहुत भाव हो गया तो थोड़ा सा एक्सप्रेस हो गया, तो उसमें क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, क्वेश्चन ये बोल रहा है स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ मैटर ऑफ शो, लेकिन हाँ, जब ये उसमें मैं वो ऐसा है, इसे प्योरली इंटरनल लाइफ, प्योरली लेकिन आध्यात्मिक है अगर ना, वो एक्सप्रेशन आध्यात्मिक है। हो गया, हाँ, हम्म, तो विजन तो तो खुद को अगर हुआ ना। वो, हाँ, तो वो बट ये उसके व्हेन आई चेहरे के ऊपर एक्सप्रेस इट, चेहरे के ऊपर आनंद आ गया, इतना हुआ बस। लोगों ने अच्छा, कहा देखो उसको कितना आनंद आ गया है। ठाकुर को कितना भाव अच्छा, हुआ करता था, वो नृत्य करते थे तो बाहरी एक्सप्रेशन तो इतना ज्यादा हो जाता था वहां तो। फिर भी यहाँ पे बोल रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट ए मैटर ऑफ शो। तो वही श्री हम्म, रामकृष्ण का नाचना गाना उसी को ले लिया लोगों ने। लेकिन श्री रामकृष्ण की हम्म, साधना और उनका अंतर ने इंटरनल जो एक्सपीरियंसेस है वो को नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये बताना चाह रहे हैं। श्री रामकृष्ण इज हैविंग, नृत्य कर रहे हैं, तो इसको आपने लिए मैटर ऑफ शो हो गया ना। इसको हाँ, आपने इम्पोर्टेंस दे दिया, बट एक्चुअली इट हम्म, इज जस्ट द अपोजिट। वो तो बहुत अधिक हम्म, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था, वो बाहर एक्सप्रेस हो गया है। डोंट गिव द हम्म, मैटर इम्पोर्टेंस टू द एक्सटर्नल शो। अच्छा, या। ठीक, ठीक मान। देन सेकेंड क्वेश्चन, पेज 361. Austerity and concentration are essential to God realization. How does the seeker realize knowledge aspect of God through ritualistic spiritual practice? देखो, स्पिरिचुअलिटी में तप एंड एक कंसंट्रेशन एंड ऑस्टेरिटी, दीज आर द साधनास। Hmm. whether you are a ज्ञानी or whether you are भक्त, that does not make a difference. Oh, अच्छा. Hmm. जो भक्त भी होगा तो उसको लेकिन कंसंट्रेशन होना हाँ, चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, ऑस्टेरिटी एंड कंसंट्रेशन। ज्ञानी तो होगा तो भी भक्तों होगा। को बाद में ज्ञान कैसे मिलता है? भक्तों को बाद अब में ज्ञान वो कैसे तो मिलता है? साधना, ये किस तरह? जितने प्रकार की साधना है वो तो अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करेगा, विचार के द्वारा करते हैं, ज्ञान मिलता है उनको। हम्म. और भक्त जो है वो भगवान की भक्ति के द्वारा प्राप्त करता है। एक इमोशन का लेकिन पाथ बाद है, में, पाथ ऑफ इमोशन है, एक पाथ ऑफ रीजन है। अच्छा, हाँ, लेकिन तो ये आखिर में पाथ ऑफ जाके तो रीजन एक ही वाले जगह को में तो मिल ज्ञान हो जाता है. जाएगा है? हम्म, हम्म, जो ज्ञान मार्गी है उसको ज्ञान होगा, जो हाँ, भक्ति मार्गी है उसको भक्ति में एक्सपीरियंस होगा। जी। लेकिन दोनों जी। में तप और एकाग्रता कम इम्पोर्टेंट है, दोनों में। अच्छा. एंड सेकेंडली, व्हेन वी से दैट एंड में जाके सारे एकाकार हो जाता है, तो वो भक्तों के लिए कैसे होता है? मतलब जैसे अद्वैत साधना में निर्विकल्प समाधि हो गया तो वो तो समझ में आ गया, इनका क्या होता है महाराज? वो भक्त सब जगह अपने भक्तों का, भगवान को देखता है, कृष्ण को देख रहा है।
एक अच्छा। बिल्ली में यहाँ पे आया ना, बिल्ली में उसको माँ को अपने कृष्ण को देखा था। हाँ। डिस्क्रिप्शन आया है ना, बिल्ली में कृष्ण को देखा था, किसी ने हम्म। भगा दिया तो बहुत नाराज हुई कि क्या किया तुम। तो हम्म। भक्त जो है वो भी एकात्मता ये हो जाती है, सर्वत्र अपने इष्ट को देखता है। हम्म। ठीक। देन क्वेश्चन 3, तो अच्छा, पेज 366। कुंडू जी, एक मिनट महाराज जी, जब वह भक्त सर्वत्र में अपने इष्ट को देखता है तो उसको क्या समाधि की अवस्था कहेंगे क्या? तुम क्यों लाते हो? तुमको कहने से क्या फर्क पड़ता है, समाधि अवस्था है या ना समाधि अवस्था है? नहीं, ये पूछते ये हैं तुम्हारी मैंने। तुम ना तो समझ, ना तो हम समाधि को समझते हैं, और न हाँ। इष्ट को चारों तरफ देखते हैं। अच्छा। ये तुम्हारी बौद्धिक बात है, इंटेलेक्चुअल बात हो गई है, समाधि है, समाधि है, समाधि है। जी। तो ज्ञान ज्ञान की हम्म। दृष्टि से और योग की हाँ। दृष्टि से समाधि दूसरे प्रकार की है, और भक्ति की दृष्टि से दूसरे समाधि है। इनको अच्छा। बीच में क्यों हम्म। लाते हो? न तो जी हम जी भक्ति की ठीक। समाधि समझते हैं, न योग की समाधि समझते हैं। जी बड़ी बड़ी हम्म। बातें कर रहे हैं, समाधि है, ठीक। समाधि है। जी। ठीक महाराज। जी महाराज। क्वेश्चन 3 महाराज, पेज 366। In this realm of mystical experience, verbal expression, mental cognition, and intellectual reasoning do not function. How does such a person carry out the day-to-day functions and social responsibilities? वो भगवान क्या है, ही सेंड्स पीपल। Ah. जैसे श्री रामकृष्ण थे, और समवन फॉर डे टू डे फंक्शन, Hmm. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Hmm. किसी को वो भेज Hmm. दिया उन्होंने, मास्टर महाशय आ गए, हृदयनाथ थे, जो इतने उच्च कोटि के हैं, तो उसको कोई ना कोई भगवान भेज देता है, सब काम हो जाता है डेली फंक्शन उनके। अच्छा। यानी इतने उच्च And लेवल पे होते हुए भी रामकृष्ण तो अपने डेली फंक्शंस करते ही थे ना। जी। hmm. Hmm. हाँ, दूसरे लोगों को मदद कर देते, खाना ले जाते थे, खुद चले जाते थे खाने के लिए। जब थोड़ा लोअर लेवल पे आ जाते थे तो खुद कर लेते थे, नहीं तो दूसरा कोई व्यक्ति तुमको मदद कर देता है उनको। ठीक महाराज। महाराज लास्ट क्वेश्चन, पेज 373. Independence is happiness and dependence is misery. Can you please elucidate this Vedantic teaching with a few examples? मतलब बात तो समझ में आ रहा है लेकिन ठीक से ग्रास्प नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं, ये तो सोशल, ये प्योरली सोशल लाइफ है। यानी तुम अगर हम्म। डिपेंडेंट हो गए तो दूसरों पे डिपेंड हो गए तो कष्ट होगा कि नहीं, कष्ट होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा तुम्हारा। यानी सोशल लाइफ में डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस दोनों है। मैं जो है रामकृष्ण मिशन हम्म। पे डिपेंडेंट हूँ, लेकिन मैं अपने कमरे हम्म। में और मेरे इस कैंपस के अंदर मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इस तरह का आप सारे जीवन में ले लो, आप अपने लाइफ में ले लीजिए, कुछ पार्ट में आप इंडिपेंडेंट हैं, कुछ पार्ट में डिपेंडेंट हैं। राइट। हाँ राइट। और हैप्पीनेस इंडिपेंडेंस से ही आता है और डिपेंडेंस हाँ, से इंडिपेंडेंट मिजरी है मिलता जहाँ पे भी। है। और डिपेंडेंस कहीं ना कहीं तो हैगा सोशल लाइफ में भी, कहाँ जहाँ डिपेंडेंस है ही तो आप बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंड करते हैं। अरे, आदमी अपना तरकारी खरीदना है आपको, सब्जी भाजी खरीदना है, उसके आप डिपेंडेंट है। अगर वो एक दिन नहीं आया तो आप कष्ट में पड़ गए ना। सिंपल बातें हैं। हम्म। सारे जीवन में डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस है। अच्छा, ये संसार की बात। सब्जी भाजी वाले के ऊपर डिपेंडेंट हो, हम्म। धोबी के लिए डिपेंड के ऊपर नहीं डिपेंडेंट हो। उसी तरह स्पिरिचुअल नहीं लाइफ महाराज में किसी संत के डिपेंडेंट हो। स्पिरिचुअल हम्म। लाइफ के लिए आपको किताबों के स्क्रिप्चर के लिए के ऊपर डिपेंडेंट हो। तुमने जो पढ़ मुझे लिया यही है पूछना था महाराज। उसको जीवन में आप उतारोगे, तो इसलिए उसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो। अच्छा ठीक।
और उसी में मतलब साधना की दृष्टि से भी जब तक मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ उसमें हमारा बाधक थोड़ा रहता है, और इंडिपेंडेंट हो जाऊं अपने आप की पुरस्कार से अपना साधना किए जाऊं तो उसी में हमारा हैप्पीनेस मिलेगा। जैसे हम हैं तो कि राम, हम अपने कमरे में आनंद से है, खाना भी हमको मिल जाता है, खाने के लिए हम हम्म। डिपेंडेंट है लेकिन मिल जाता है। हम मंदिर जाने के हाँ। लिए इंडिपेंडेंट है, जब चाहे नहीं जावे। तो हम्म। जितना हमारा इंडिपेंडेंस है उतना आनंद है। और जहाँ कहीं हम्म। डिपेंडेंस होगा, अरे आज खाना नहीं मिला, देर से मिला, तो ये हमारा खाने के लिए देर से मिला, ये कैसा बना दिया, इसमें ये डाल दिया, तो ये हम तो जीवन में सफरिंग आ गई। ये तो सिंपल बातें हैं, डे टू डे लाइफ में हमेशा डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस बने रहते तो महाराज हम्म। जी, एक चीज पूछूं महाराज जी, तो हमारा जितना लाइफ में जितना डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहिए और इंडिपेंडेंट होने का ट्राई करना चाहिए, यही होना चाहिए ना हमारा हैं। यही तो लक्ष्य। डेफिनेटली डेफिनेटली। और एज ए थैंक यू, मैटर थैंक यू। ऑफ सन्यासी का जीवन जो है, ये एज फार एज पॉसिबल पूरा इंडिपेंडेंट जीवन, जहां हमको ठीक। सामान मिल लिया, रहने के लिए मिल गया, वो मिल गया तो मिल गया। कहीं एक कमरे में रह लिए, भिक्षा मांग के खा लिए, उसके लिए हमें खाने के लिए कोई खाना बनाने वाला के डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। हमारे नीड्स जो है वो कम कीजिए तो डिपेंडेंस कम हो जाएगा। Yes. हाँ। ठीक। चलो देवाशीष। ठीक। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम। हम्म, महाराज जी, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ये तो आपने दिलीप भाई को थोड़ा सा टच भी किया था, लेकिन मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। जी। स्पिरिचुअल लाइफ is not a matter of show. The more hidden it is, the stronger and more fruitful it becomes. The more it is expressed, the weaker and more superficial it becomes. So, my question is, while practicing the spiritual disciplines, we discuss our queries with senior devotees and the senior monks, and in the process, our bhava or inner feelings get expressed. Is it harmful for the seekers डोंट practicing एक्सप्रेस this? योर इनर फीलिंग्स, अच्छा। ओनली एक्सप्रेस योर डिफिकल्टीज। अच्छा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, हाव भाव बताने अच्छा। की जरूरत नहीं है। हाँ। कई लोग हैं वो हाव भाव बातचीत करते हुए तो हाव भाव के बिना काम भी नहीं करते हैं। दैट इज वेरी अच्छा। बैड। हाँ, अच्छा। वेरी बैड। हाँ, लेकिन सीनियर मॉन्क्स जैसे आप जैसे हुए हो गए, आपका पास तो हम लोग ओपन बुक हो गए ना, हमका जितना जितना प्रॉब्लम ओपन तो होता है है, लेकिन फीलिंग्स। अब तो हम तुम अगर कोई तो हाथ बार ज्यादा दुगलाओगे, थोड़ा आंखें मटकाओगे तो हम डांटेंगे। हाँ। बातचीत नहीं नहीं, करना आपको करो, तो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, वो बात सही है। यानी हमारा जो भाव या फीलिंग्स या कोई भी प्रोग्रेस या कुछ भी चीज हम लोग ओपनली आपसे डिस्कस करते हैं, तो ये नहीं तो नहीं, दिस इज डिस्कस अलाउड, ये डिस्कस तो करना अलाउड ना। है। लिसन, डिस्कस करना है, क्वेश्चन करना एक बात होती है। हाँ। हाँ। नहीं, मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, फॉर एन एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं। हमारा अभी ग्रुप में ही किसी ने बोला कि इस ठाकुर जी को मैं अपना पिता समझता हूँ, तो ये अपना भाव भी तो एक्सचेंज हो गया ना। तो ये सब चीज जो है ये तो तो आपसे हम पूछने लोग के शेयर कहने कर। की क्या, प्रश्न ये है कि ये कहने की क्या जरूरत है। Yes. लेकिन ये आ ही जाता है बातचीत में, बातचीत का सिलसिले ना, में। ये दैट इज अ बैड हैबिट। नहीं, Yes. ये तो ग्रुप में ठीक है महाराज जी, मुझे समझ में आ गया कि ग्रुप में ठीक बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपसे तो पर्सनली तो बोल ही सकते हैं ना महाराज जी। ठीक है, ऐसे गुरु के पास में जाके पर्सनली बात कर सकते हो। हाँ, तो गुरु तो अभी चले गए हैं, तो अभी उपगुरु जो है आपको, जो हम लोग सब कुछ बोलते हैं, हाँ ठीक तो है, ये ठीक चल। है, कर सकते हो, अलग ठीक से है, थैंक यू। पर्सनली करना है, बातचीत करना है, भाव बताने की कोशिश नहीं करना है। दैट इज द ओहो, पॉइंट। कभी कभी हाँ। ये भाव मेरा गलत भी हो सकता है ना, तो आप करेक्शन करके मुझे रेल डिरेल्ड हो जाने से आप रेल में नहीं, फिर। हम तो ये कहेंगे कि भाव एक्सप्रेस मत कीजिए। नहीं, आपका कोई दूसरे का साथ क्वेश्चन नहीं है तो करेंगे, बताइए। दूसरे का साथ नहीं ये करेंगे, इफ यू आपका हैव साथ गॉट तो ए कर सकते हैं क्वेश्चन ना। यू आस्क। नहीं नहीं, आपका साथ तो कर ही सकते हैं ना महाराज जी।
जब आप करेंगे तब आपको डांट मिलेगी और कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, सेपरेटली, नॉट इन द ग्रुप। अरे सेपरेटली भी आपको डांट मिलेगी। हाँ, तो वो बात तो कोई और तो कोई सुनेगा नहीं ना, वो डांट तो सुन लेने के लिए हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक अच्छा है, थैंक ठीक यू है मोरारी। ठीक है। चलो सुन लिया आपका। आपका डांट भी तो डायरेक्शन चेंज कर देता है, सही सेकंड डायरेक्शन दे सेकंड। देता है। सेकेंड क्वेश्चन में मैं जा रहा हूँ। फ्रॉम द ट्रेडिशनल हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू, देयर आर मच फाइनर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस than the Yes. one in which we experience the sense world. When the mind is pure and saturated with the spirit, such high state of consciousness is possible. So my question is, consciousness is one and the same consciousness is in each one of us. How to reach the final state of consciousness? By यू सी purity? योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को सबके चारों तरफ फैली हुई कॉन्शियसनेस से अभी मिलाइए मत। डोंट कंफ्यूज देम। अच्छा जस्ट स्टिक ऑन टू योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। अच्छा। सपोज देयर इज अ ड्रीम कॉन्शियसनेस, याद है ना, रात को भी नींद में स्वप्न आता है, तो ये तो जी पर्सनल हुआ ना। जी महाराज जी। देन वेकिंग स्टेट का कॉन्शियसनेस है। देन जी महाराज जी। इमेजिनेशन का स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। ओहो ऐसे अच्छा। हाँ फिर उसके बाद स्पिरिचुअल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। हाँ हाँ। निराकार एक्सपीरियंस है, साकार एक्सपीरियंस है। ये दीज आर सो मेनी लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा जी महाराज जी। हाँ, तो ये साधना का द्वारा ही हम लोग ये आगे कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ा सकते हैं ना महाराज जी? तो कॉन्शियसनेस वो उसमें अलग प्रकार की कॉन्शियसनेस आएगी। तो आप बैठे होंगे, ध्यान हो रहा है, पहले अभी ध्यान चंचल, मन इधर जाता है उधर जाता है। जी महाराज जी। ग्रेजुअली मन कंसंट्रेट हो जाएगा जी महाराज और जी। आपको अपने इष्ट का रूप क्लियरली दिखेगा। ये एक प्रकार की कॉन्शियसनेस होगी। अच्छा जी महाराज जी। उसके और आगे जाएंगे तो और क्लियर होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जी महाराज जी। चलिए। जी महाराज जी। जी अच्छा महाराज जी, सेकेंड क्वेश्चन ने आपने दिलीप भाई को बता दिया है कि गोपाल माँ का जो डिवाइन इनेबिलिटीज है, इनेब्रिएशन है। तो हम मेरा क्वेश्चन था कि मेरा क्वेश्चन पढ़ लूं। ये तो आपने बता दिया, मैं आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। गोपालेर माँ हैड experienced the bliss of constant divine inebriation. It was difficult for her to live without it. Is it is this state called samadhi? तो आपने तो बता ही दिया दिलीप भाई को, तुमसे क्या मतलब है समाधि का। तो ये अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा आंसर। I'm going to the next question. Question number 344. The master fed Gopaler Ma with various delicacies and gave her some food with which he has received from the several Calcutta business people. Senior Ramakrishna, Sri Ramakrishna would give these food items to Swami Vivekananda and Gopal and Ma. He knew that the minds of these two great souls were in such a high realm that they could never be affected by eating such food. So my question was, Swami Vivekananda was a Gyani, nor a Brahman. Can Gopal and Ma, a great devotee and bhakta, be compared with compared with him? ये क्वेश्चन आपने दिलीप भाई को ही पूछा था उन्होंने। हाँ, ऑलरेडी डिस्कस, इट इज ऑलरेडी हाँ डिस्कस। हाँ, उसमें आपने बताया कि प्योरिटी। तो यस, प्योरिटी, हाँ प्योरिटी वर्ड आपने यूज किया। काम काम कांचन, डिजायर, डिजायर काम कांचन, लस्ट की डिजायर, सेंस एंजॉयमेंट की अप्रोच। डिजायर, हाँ सेंस राग एंजॉयमेंट। राग द्वेष एंगर, हाँ ये सब चीजें हैं। इनके ये प्योरिटी के कारण ये सब हटाना। रिमूव दिस ऑल दिस थिंग्स, देन योर माइंड बिकम्स प्योर। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ महाराज जी। 347। हाउ इज इट दैट गोपाल मा नेवर हैड द विजन ऑफ द घोस्ट्स, hideous looking and skeleton like forms in her house or room? But Sri Ramakrishna, whose spirituality is more than Gopal Ma,
had the vision of these ghosts. मतलब है कि गोपाल माँ का श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं कि गोपाल माँ का जो स्पिरिचुअलिटी है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं गोस्ट्स, हाइडियस लुकिंग स्केलेटन फॉर्म लाइक जो आदमी है उससे. तो मेरा देखो क्वेश्चन है सुनो, कि listen, listen. When Sri Ramakrishna is talking to me or you, he is not in bhav. Yes. अच्छा. But Gopaler Ma, whenever she is there, she is always continuously seeing Gopal. So Sri Ramakrishna could see ghost. But Gopaler Ma always saw Krishna. So ghost, the question of ghost never arose in her mind. Oh. That means it has got nothing to do with spirituality, is it? Nothing, absolutely nothing. So Sri Ramakrishna himself is saying that spirituality of Gopal Verma is protecting Gopal Verma from these ghosts. तो इसीलिए मैं Yes. क्वेश्चन के स्पिरिचुअलिटी प्रोटेक्ट कर रहा है. हेलो हेलो Yes. हेलो. Yes. ओके. तो ये माने श्री रामकृष्ण को दिख गया ये सब गोस्ट और उनको दिखा नहीं है, तो वही मैं पूछ रहा था. No, both are protected from ghosts. Sri Ramakrishna अच्छा. is seeing, she is not seeing. That is the difference हाँ. only. अच्छा. Hmm. अच्छा. अच्छा. Why are महाराज you जी interested? Are you interested in seeing ghosts? नहीं, not I, whether I am interested or not, that thing appears. Whether it doesn't depend on my interest, no, Maharaj ji. This kind of things. Anyway, my computer is giving trouble. So can you hear me, Maharaj ji? Can you hear me? Oh yeah, Can you hear nowadays me? this is the ghost. This computer is the modern ghost. Maharaj ji. हाँ हाँ मिल गया. तो अभी अभी मास्टर गोपाल, चलो लेट्स आई एम गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज जी. Gopal Maja, how is the fifth number question number 5? Swami Vivekananda said, "Ah, this is the old India that you have seen, the India of Beautiful. prayers and tears, of vigils and fast, Beautiful. that is passing away." Why did Swamiji say this? We still have women, especially women folk in India, of prayers and tears, of vigils and fast. अभी भी मैं बहुत लोग को देखते हैं वही गोपाल माँ जैसा ही they are practicing the spirituality and all. So ये Swami Vivekananda, if you have to ask Swami Vivekananda, he might be meaning something else. something We don't know your experience and Swami Vivekananda's experience and be thinking is different. How can I comment upon? महाराज जी आपका एक्सपीरियंस ये सबसे बताइए ना महाराज मेरे जी. को तो कोई ना किसी को मैंने किसी को दर्शन होते हुए देखा नहीं है, ना मेरे को कोई दर्शन वर्ष नहीं होता. ठीक ठीक है महाराज जी, ठीक है, ओके. थैंक यू महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, प्रणाम महाराज जी. टीटू घोष अनम्यूट करना है. Last time Itukji was not able to unmute herself. So let's wait if she can unmute herself. Let her switch off and switch on. Give Okay, us some time. I will call Give them- Ituji to rejoin. Yeah. Call her and ask her to rejoin. Ituji, can you try Yeah. to unmute? No. I'll call her. Shift. And same problem was there last time with Rita also. Yes. So we have to ask them both to unmute themselves. Yeah, leave the meeting and rejoin. चलो, so we take Satish Vig. Yes, he is there. Pranam Maharaj. Yes. Maharaj, my first question. Sri Krishna used to appear to Gopal's Ma as seemingly solid form. Maharaj, this form was not visible to others. How could it be solid form? It may be subtle form. Varupa Thakur used to visualize during it. अच्छा, जब आप ध्यान करते हो
जी अपने इष्ट का ध्यान देखो, अगर राम का ध्यान करते हो तो राम को सॉलिड सोचते हो कि पेपर पे सोचते हो? एस्पेक्ट। महाराज वो तो हम अपने मन भगवान में राम, सोचते हैं ना पहले। राम का रूप जब सुनो सिनेमा में हम देखते हैं तो सॉलिड दिखता है कि नहीं दिखता है? जी जी क्या हो रहा वो है तो जी महाराज महाराज। पेपर पे है, वो तो उस पे स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन हमको दिखता तो है ना कि पूरे राम है कि नहीं है, पूरे सबके सब पूरे राम है। लेकिन वो अपने मन में कल्पना करते हैं ना महाराज। हाँ जी, हाँ जी, तो वो तो मन में सटल ही फॉर्म वो होगी। सॉलिड दिखाई देता है। ये मन की बात हो रही है, सॉलिड बात की। अच्छा, फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब कि सटल फॉर्म ही है ना महाराज। हाँ हाँ, लेकिन श्री जी रामकृष्ण जैसे उनमें तो बोलते हैं कभी कभी हम एक्चुअली फील करते थे। ये बहुत ऊंची बात है भाई। ये फील तो करते ही हैं महाराज, वो गोपाल माँ भी तो फील ही करती थी, तो ठाकुर भी ऐसे फील ही करते थे, जो दर्शन होते थे उनको उनको फील करते थे, लेकिन दूसरों नहीं, को। फील यानी कि हाथ से छूते थे क्या? देखो, सुनो, वो हाथ से छूते थे, वो गोद में लेती थी, चलती थी। जी जी वो जी जी गोद में लेके गई थी दौड़ती हुई माँ ठाकुर के पास में, तब बाल कृष्ण उसकी गोद में थे। जी जी तो ये उनके लेवल पे वो तो भगवान जो है वो सॉलिड हो गए थे। जी 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 महाराज। इसको Thank you, मिस्टिकल thank you, मिस्टिकल एक्सपीरियंस कहते हैं thank you. महाराज। इसको मिस्टिकल कहेंगे ना, मिस्टिकल वही अनुभव कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं अनुभव कर सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज, Gopal Ma became widow at young age. Alright, my question is it also predestined that suitable circumstances become available to a sincere sadhak for sadhana? ऐसा है कि उस जमाने में बाल विवाह की प्रथा थी, चाइल्ड जी जी मैरिज का कॉमन था। जी और उसके बाद में बच्चा चाइल्ड मैरिज हो गया, उसके बाद में 8-10 बरस की हुई कि उसका हस्बैंड मर गया, तो जी विधवा, महाराज। बाल विधवा हो गई। जी महाराज। कोई बाल विधवाओं का विवाह नहीं होता था। ये ये सोशल कस्टम्स हैं। वो जी घर जी में काम करती रहती थी, ध्यान जप करती रहती थी, अपने भाई के घर में रहती थी, और अपनी बहू को, जो अपने भाई के डॉटर होती, भाई के वाइफ जो होती थी, उसको सेवा कराती थी। वो घर में एक बड़ी माँ जैसी रहा करती थी विधवा, और ध्यान जप करती थी। वो घर की मालकिन जैसी रहती थी और ध्यान जप करती थी। तो ये है, इसलिए है कि ये जो है ये चीजें, ऐसा नहीं है कि वो उनको, अब वो ऐसे में अगर उसको मौका मिला, अगर उसका मन ध्यान की तरफ गया तो ध्यान जप करेगी, और नहीं तो घर के काम में लगी रहेगी। जी महाराज। ये मतलब कि सर्कमस्टांसेस भी उसको अवेलेबल हो गया, और उसकी वो नहीं नहीं, अधिकार। अवेलेबल ये नहीं, ये एक तो सोशल कस्टम है। सोशल कस्टम में अगर कभी वो विधवा बन गई, बाल विधवा बन गई, तो या तो घर का काम करेगी या फिर वो भगवान का भजन करेगी, जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार। महाराज वही मत कह, मेरे कहना मतलब वही है कि चाहे एडवर्स, उसको एडवर्स सर्कमस्टांसेस कह सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो थे गोपाल माँ के लिए वो पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस बन गए उसके लिए। वो हो गए उसके लिए, साधना के लिए उसके लिए कंडूसिव सर्कमस्टांसेस हो। हाँ ठीक है, और क्या है। चलो, तो क्वेश्चन तो नहीं है, तुमने ये कमेंट किया है, मैंने उसके ऊपर कमेंट कर दिया। मेरा कमेंट नहीं महाराज, मेरा ये है कि ये भी एक किस्म की ईश्वर की कृपा से होता है, या कोई ऐसा कुछ खेल होता है जो। अरे विधवा होना क्या ईश्वर की कृपा से होता है? और उसके लिए तो, उनके लिए तो देखो ना भगवत मैंने प्राप्ति ये होगी तुमको महाराज गोपाल माँ इसलिए के मैं लिए। कह रहा हूँ, इसलिए मैंने तुमको सोशल सिचुएशन बताई। जी जी
यूं तो विवाह भी ईश्वर की कृपा से होता है, सन्यासी भी ईश्वर की कृपा से होता है, अब दूसरे स्थान में तीर्थ यात्रा करते हैं तो ईश्वर कृपा से होता है, तो सभी ईश्वर कृपा से होता है। और मैंने इसको तुमको सोशल एस्पेक्ट तुमको बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है महाराज, नेक्स्ट वो क्वेश्चन ऐसे पे जाते हैं। ऐसे में वो तो उसका मन भाग्यशाली थी कि वो करने लगी, नहीं जी। तो वो भी अपने भाई के घर में रह के और हम्म, घर की मालकिन बन जाती। मान कर। हाँ। जी महाराज। जी महाराज, मतलब कि उसमें भावना भी होनी चाहिए, सर्कमस्टांसेस भी होने चाहिए, तो ही आदमी साधना कर पाता है। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. ठाकुर एट स्टेल स्वीट्स ब्रॉट बाय गोपाल मा। महाराज ठाकुर को तो पता था कि ये जो फ्रूट है, वो जो स्वीट्स हैं वो स्टेल हैं, बट ठाकुर ने उसको फिर भी खा लिया। तो ये कैसे महाराज ठाकुर ने फिर कैसे उसको कंज्यूम कर पाते थे? उनका तो शरीर वैसे भी, उनका पेट जो वैसे ही डेलिकेट रहता था। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? मैंने तो महाराज कभी वो सोचा ही नहीं इसके बारे में, हमने तो कभी सोचा ही नहीं है। और जहां तक तुम्हारा प्रश्न है, सावधान रहना, खराब जी, चीज मत खाना, नहीं नहीं नहीं, इतना ध्यान बिल्कुल रखो बस। ठाकुर को तो उनको मतलब कि उनकी कुंडलिनी पावर्स होती थी ना महाराज, जो भी थे वो खा नहीं लेते ना, थे अब उसको जो। कुंडलिनी पावर लाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक। इसके लिए कुंडलिनी पावर क्यों ला रहे हो? थोड़ी सी महाराज चीज वो इधर डाइजेशन। नहीं नहीं, कुंडलिनी पावर मत लाओ इसके लिए, वो मानसिक महाराज शुद्धता वो के ऊपर निर्भर करता है। जी जी महाराज, वो आपने पिछले पढ़ा था ना उनके गोश्त के केस में, कि वो जो भी उनके डालती थी उसके मुंह में, तो वो सर पाके उसको लेता था। तो ऐसा कुछ जहां भी हुआ होगा, ऐसा ही कुछ। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन महाराज। ठाकुर saw ghost in Gopalma's living place. Maharaj, did ghosts appear in solid form to Thakur, but not to others? वही सेम क्वेश्चन महाराज। नहीं, वही तो बातचीत हो गई ना, ये सब मानसिक लेवल पे है, सटल लेवल पे, हाँ, सूक्ष्म लेवल पे है। ठीक 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 जैसे ठीक। स्वप्न होता है इस तरह का है। जी महाराज जी। हाँ। ठीक ठीक है महाराज जी, आपको बड़ा थैंक यू महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज इतू जी आ चुके हैं। हाँ बोलो। प्रणाम महाराज। बोलो। महाराज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टेक्स्ट। वेल, टेक एनी सेइंग of his and I shall explain it to you. स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं। All right. Harmohan said, please explain his story of the elephant god and the Mahut god, which illustrated his instruction to see God in all beings. So my question is it possible for us to find out another meaning of this saying, which I'm unable to think? No, I don't understand. वो बहावत गॉड और हाथी गॉड ना, जी। तो वो मतलब ये है कि सबके भगवान है। हाँ, यही तो अब तुम अगर सोच रही हूँ। दूसरा मीनिंग लगा लो तो यही कहेंगे, मॉडर्न मेडिसिन में कहेंगे सब में एटम है, हाथी में भी एटम का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन हाँ, प्रोटॉन से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ये तुम्हारा मीनिंग हो जाएगा। जी आप जी लगाओ जी। अपने मन से, क्या करना है, उससे क्या फर्क पड़ता है हाँ, तुमको, क्यों करना चाहिए प्रश्न ये। नहीं ऐसा है ना कि एनीवन। हमने पढ़ा है कि ठाकुर की कथामृत में हर लाइन का बहुत डीप डीप मीनिंग होता है, मगर हम लोग तो केवल एक ही मीनिंग पकड़ पाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि पूछें ये। देखो देखो, शास्त्रों में ठाकुर के समेत बहुत सारे मीनिंग है, हमको एक मीनिंग लेना है बस। अच्छा सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना है, जी। सब में भगवान को देखना है। अब जी ये 500 300 500 500 400 500 किताब पेजों की गॉस्पेल में कितने मीनिंग निकालना चाहते हो, तुम्हारे लिए कितने आवश्यक है?
जी, अरे ये भी एक बात मीनिंग सही बात आवश्यक है है बाबा। जी। निरंतर भगवान का ध्यान जप करो और जी भगवान को सर्वत्र देखो, मन को भगवान में लगा के रखो। अब तुम जी बहुत सारे 10 मीनिंग देखना चाहते हो तो देखो बाबा, ये कैसा क्वेश्चन है। जी जी राइट। अच्छा, वो और स्वामी मेरा जी, सुनो सुनो, स्वामी जी जी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं वहां पे। अच्छा यानी सांसारिक दृष्टि से भी देखोगे तो श्री रामकृष्ण के बहुत सारे जो बोले हैं उसके बहुत सारे मीनिंग निकल जाएंगे। जी यानी उसके पर स्वामी श्री रामकृष्ण की किताब गॉस्पेल के ऊपर बहुत सारी कमेंट्रीज हो सकती हैं। जी जी हाँ, जी तो अभी तो बहुत सारे मीनिंग स्वामी जी खुद बोल रहे हैं। इतना कंप्लीट वर्क और स्वामी विवेकानंद जो है वो एक प्रकार से कमेंट्री है श्री रामकृष्ण के टीचिंग के ऊपर। जी हाँ, और हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं ब्रह्मेशानंद के आर्टिकल, वो भी श्री रामकृष्ण की टीचिंग्स के ऊपर कमेंट्री है। हम्म तो अब तुम भी लिखना चाहो तुम भी दूसरा मीनिंग निकल जाएगा। हम्म। और मेरा सेकंड क्वेश्चन अभी खो गया, ये आपके पास होगा, आप जरा पढ़ दीजिए ना मुझे। मेरा क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं नहीं है, चला गया मेरे ईमेल से। नहीं नहीं, मैंने तो केवल उसमें कमेंट में लिखा है, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, शी नेवर बॉदर्ड अबाउट इट। ओ, आपने वो भेजा है कोई नहीं मेल नहीं मुझे? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक कमेंट अच्छा लिखा है। क्या अच्छा हुआ, अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ चला गया? पता नहीं ये मैं तो ईमेल से देख रही थी, तो देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन नहीं मिल रहा। वो भी उसी इसी मतलब वो उसका क्वेश्चन का सार ये है कि गोपाल की माँ को ठाकुर ने उनके 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 ऊपर से भूत को निकाला नहीं। जो भूत से मतलब मुलाकात हुई, तो उन्होंने क्यों नहीं उसको हटा दिया? वो तो अकेली रहती हाँ, थी। ये यही मैंने, वो गोपाल की माँ को वही नशे, उसको कोई वो चिंता ही नहीं है, भूत आए नहीं आए मेरे को क्या करना है, मेरे तो गोपाल है मेरे पास। हाँ, बहुत। और श्री रामकृष्ण ने भी बॉदर नहीं किया। ओ अरे एक विचित्र बड़ी महान बात है ये। हम्म वहीं रहती है, हमेशा वहीं रही, उसके साथ भूत हाँ भी वही। रहते थे हमेशा। हम्म वो कुछ चिंता नहीं करती उसी गोपाल के साथ में। और गोपाल भी जो है वो भूत को भगाते नहीं थे। जी अजब सी बात है, कैसे रहती थी वो? हो गया, ठीक है, बंद करें। हाँ जी, महाराज, प्रणाम। महाराज जी एक सवाल है, वो ये है, हाँ, आप साधक के भाव के बारे में कुछ बताना चाहते थे। ओ जी हाँ, मैं ये कह रहा था, अब याद आया। ये जी, पार्टिसिपेंट कितने हैं संजय? 20 थे, 20। देख रहा हूँ मैं, अभी 19 है। अच्छा, 19 है हमारा। मेरा ये कहना है कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। जैसे मैं हूँ, तो मैं एक सन्यासी हूँ, रामकृष्ण मिशन का सन्यासी हूँ। जी और मैं एक क्लास लेता हूँ। आप लोग हैं, आप गृहस्थ हैं, आपकी जी फलाने फलानी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है। सबकी अलग अलग पहचान है। गृहस्थ होते हुए भी आप, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई जी जो कुछ करता है, लॉयर है, ये सब हैं आप लोग। इसके जी, साथ में आप एक और आइडेंटिटी ऐड कर लीजिए, सबके सब, कि जी आप सब साधक हैं। हाँ, बराबर। जी जी ये जी बहुत बड़ी बात है, हाँ, साधक है। And हाँ, ये आप पूरा ऐड कर लीजिए, साधक हैं। जी ग्रुप जी मीटिंग अटेंड करें न करें, ऑफिस जाए न जाए, लॉ का काम करें न करें, आप एक और आइडेंटिटी ऐड कर लीजिए कि आप साधक हैं। एब्सोल्युटली
हाँ, ये इतने साल हो गए जूम मीटिंग करते हुए, आध्यात्मिक बातचीत ही होती है हमारी। तो इसमें एक ये बात करनी है कि ईश्वर भगवान का दर्शन करना ये हमारा साध्य है। हम साधक हैं और हम एक प्रकार की, किसी न किसी प्रकार की साधना करते हैं। तो साध्य, साधक, साधना, इन तीन चीजों को और जोड़ लीजिए। ठीक है, ये मैं इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता था, मैंने नहीं बताया कभी। लेकिन इसको एक इम्पोर्टेंट चीज अपने जीवन में, अपनी पहचान में, आइडेंटिटी में उसको कर लीजिए कि हम साधक, हम इंडिया के नागरिक है ना। जी हाँ जी। सिमिलरली हम भगवान के साधक, भगवान के प्राप्त करने वाले भक्त हैं, साधक है। साधक की बात, भक्त की बात अलग, साधक की बात, दोनों में फर्क हो जाता है। जी भक्त तो हैं लेकिन साधना नहीं करते, साधना के भाव नहीं है। अब भक्त है लेकिन भगवान को देखने की इच्छा नहीं उठती। भक्त है लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम साधक हैं, भक्त यस होते हुए भी साधक हैं, ज्ञानी होते हुए भी साधक हैं। जी ये साधक का भाव मैं ये याद रखना चाहता, इसलिए मैंने बताया था। वो दिलीप भाई को बुला के रिमाइंड कर देना मेरे को। ये साधक भाव हम सभी को बना कर रखना चाहिए। जी इसके ऊपर गहराई से ध्यान कीजिए और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है। ये महाराज अच्छा, शांति मंत्र बताओ। हाँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। राम कृष्णार्पणमस्तु। ठीक है भाई। प्रणाम महाराज। महाराज, महाराज जी, नमस्कार, नमस्कार, सबको प्रणाम, प्रणाम सबको स्वामी प्रणाम, जी। नमस्कार, महाराज जी नमस्कार, प्रणाम नमस्कार महाराज सबको। जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम नमस्कार महाराज जी। हाँ प्रणाम महाराज महाराज जी महाराज अरे जी यार, प्रणाम। कहाँ गया? प्रणाम स्वामी जी। महाराज क्यों नहीं आ रहा है? स्वामी जी प्रणाम। महाराज सत्यानंद बोल रही हूँ, प्रणाम। हाँ हाँ, ठीक है। आज एक मिनट सर। बागमर जी आए हैं हाँ, शनिवार संजय, संडे टॉक में। संजय, जी महाराज कौन आए हैं? ये दिलीप दिलीप बागमर जी। दिलीप बागमर साहब आए हैं महाराष्ट्र से। तो आप एक बार उनसे भी परिचय कर लें, बाकी नए भक्त लोगों को भी बताऊं कि तो वो किसी के माध्यम से कल हमसे संपर्क हुआ और महाराज से संपर्क करने की इच्छा रखते हैं, चर्चा करने की इच्छा रखते हैं। तो ये समझ करके हमने उनको निमंत्रित किया है और वो पहली बार जुड़े हम लोग के साथ। तो भाई आप जरा कैमरा अपना ऑन करेंगे तो महाराज आपको देख पाएंगे और हम लोग भी देख पाएंगे। नहीं कैमरा ऑन है या म्यूट है, अनम्यूट करवाना है। अनम्यूट भी करना है, कैमरा दिख तो नहीं रहा है मुझे। हाँ, हमें भी नहीं दिख रहे हैं। कैसे किया जाता है मुझे इसका इतना ज्ञान नहीं है। नहीं हो गया हो गया हो गया। नहीं, आप दिख गया दिलीप जी। धन्यवाद प्रणाम महाराज जी, नमस्कार। महाराज जी बोल रहे हैं। अभी आए थे आप? खैर विजय, बिना बिना उसके भी बात कर लीजिए। आप कहाँ से हैं? हाँ, प्रणाम महाराज। से हूँ महाराष्ट्र। दिलीप बागमर, दिलीप हाँ, बागमर, महाराष्ट्र पुणे से नाम हूँ। आया। हाँ, दिलीप बागमर, आप कहाँ और पे जैन हैं? हूँ, पुणे से है और जैन हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं भी श्वेतांबर ऐसा है जैन कि हूँ। आपने मेरे जैन आर्टिकल पढ़े हैं, तो मैं भी जी बेसिकली बाय बर्थ में जैन हूँ। ओके। प्रणाम और महाराज। मैंने बहुत सारे जैन आर्टिकल्स लिखे हैं। जी हाँ। तो मैं नमो अरिहंतनम का और जो पहले मंत्र है अपना जैन नौकार संतों से भी मैंने सत्संग किया है।
नौकर मंत्र क्या, मैं जी नानालाल जी महाराज साहब के पास में विचक्षण जी के साथ में बहुत सारा कई बार जाता था, प्रश्न करता था, और जैन आर्टिकल्स मेरे करीब 15-20 आर्टिकल्स हैं जैनिज्म के ऊपर, उनके वेरियस एस्पेक्ट के ऊपर। जी हाँ, मुझे ये भावार्थ चाहिए कि मैं नमो अरिहंतम के ऊपर कुछ स्टडी कर रहा हूँ, उसके बारे में मुझे आपसे जो कुछ ज्ञान प्राप्त होगा वो मेरे अभ्यास के लिए सही रहेगा। तो आप मेरे से ये दिलीप, अपने वो पंकज भाई से, अपने वो संजय, इनको अपने ईमेल मेरा आईडी दे दो। जी संजय, जी महाराज। ये brahmeshanand@gmail.com पे आर्टिकल, जिनको जो पूछना हो मेरे को पूछ लेंगे। जी जी।